Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. I am going to deliver a lecture on anatomy and histology. The topic is joints. I have divided into two major parts. Now let us see the contents. Here are the contents. Part 1 includes classification of joints, and second is classification of synovial joints based on mechanical analogy. Part 2 includes synovial joints and its types, blood and nerve supply, homeostatic imbalance, or clinical anatomy or diseases of the joints. Now let us go towards the part 1, classification of the joints or definition of the joint. Now coming to in this slide, joint, or the second name is articulation. The study of joint is called arthrology. जो study of joint है इसको arthrology कहते हैं. Arthritis is the inflammation of the joints. इसी तरह नाम मिलते जुलते इनसे आएंगे. arthrology systematic anatomy में हम डिस्कस कर रहे हैं. Joint or other name is articulation or articular surfaces is Greek synonym of joint is arthron, यानी arthron को भी joint कहते हैं Greek में. So we use joint or articulation in the synonym. A site where two or more bones or cartilages come together or unite together, whether or not movement occurs between them is called a joint. ऐसे साइट जहाँ पे टू या उससे ज़्यादा दो से ज़्यादा बोन्स या कार्टिलेजेस आपस में मिलते हैं और उनमें बेशक मूवमेंट हो या ना हो, दोनों कंडीशन में उन्हें जॉइंट कहेंगे. जॉइंट के सम ऑफ द जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबल यूनियन बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्केलेटन. Other joints are so designed as to allow free movements between different parts of the skeleton. Two things are here, you can see. Some of the joints provide stable union. Number one is they provide stable union, some of the joints, between various components of the skeleton. Skeleton जो movement होती है वो joints के बगैर नहीं हो सकती, muscles के बगैर नहीं हो सकती, bones के बगैर नहीं हो सकती. These are called locomotor apparatus, जिसमें bones, joints and muscles are included. Other joints are so designed as to allow free movements, जैसे synovial joints हैं उनकी free movements होती हैं. बाकी Synchrondroses है जिनकी movement नहीं होती. Let us go towards the functions of the joints. Now the chief function of the joint either to provide a stable union or to permit free movement. दो जो इसके major uses हैं, function हैं, एक है स्टेबल यूनियन को स्टेबल करना. जॉइंट्स अगर सही होंगे, मजबूत होंगे तो दे कैन परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ द लिम्स. जो हमारे हाथ पाँव है, लिम्स यानी इनको कहते हैं अपर लिम्स, टू अपर लिम्स एंड टू लोअर लिम्स. डिपेंड्स मेनली अपॉन द टाइप ऑफ टिश्यू बाय विच द बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. नेक्स्ट, ये फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स इंक्लूड जॉइंट्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट. स्टेबिलिटी फाउंड इन द बोन्स ऑफ द स्कल. ख़ासतौर पे अगर देखा जाए स्कल में जो बोन्स की स्टेबिलिटी है वो बरकरार रखते हैं और उसमें काम देते हैं. नाउ वी गो टुवर्ड्स द कलर कोड. हियर यू कैन सी डिफरेंट कलर्स आर शोन एंड अबाउट 10 to 12 joints of the body are there in the body in pair form. तो उसको हम देख लेते हैं. समटाइम्स पेयर फॉर्म में है और कुछ सिंगल हैं, जिसमें एटलस एंड एक्सेस है. यहाँ पे एटलस बोन है जो सीट ये सर्विकल वर्टिब्री है, उसको एटलस पहली जो वर्टिब्री है उसको कहते हैं C1 को, एंड एक्सेस उसके साथ है. इसके बाद शोल्डर जॉइंट देख सकते हैं. ये भी जॉइंट की टाइप है जो कि हम मूव करते हैं शोल्डर के ज़रिए. बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है. रेडियो अल्ना और रेडियस का आपस में जो जॉइंट है ये भी कुछ आपस में मिलाते हैं. कार्टिलेजेस मिलते हैं या फाइब्रस जॉइंट आपस में मिलाते हैं. इंटरकार्पल
जॉइंट्स हैं जो कार्पल को आपस में मिलाते हैं या वर्क करवाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं. नाउ हियर इज़ द हिप जॉइंट. ये जो हिप बोन है दोनों साइड पे, यहाँ पे हिप जॉइंट है. इसके बाद इंटरटॉर्सल जॉइंट्स है, टॉर्सल्स का आपस में जो जॉइंट है. सब टार्सल उसका छोटा नेक्स्ट पार्ट जो है, उससे अगला पार्ट है, उसको सब टाइटल जॉइंट कहते हैं. इसके बाद एंकल जॉइंट है जिसे टखने कहते हैं. इसके बाद नी जॉइंट है जिसे नी जो इज द पार्ट बिटवीन द टू बोन्स ऑफ द लेग्स, लोअर लिम्स की हैं, घुटने जिसे कहते हैं. इसके बाद बेस ऑफ थंब है, बेस ऑफ द थंब की भी मूवमेंट होती है. रिस्ट जॉइंट है. इसके बाद एल्बो जॉइंट है. इन जॉइंट्स को अगर आप गौर से देख लेंगे तो सारी बेस्ड इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे. लेट अस गो नेक्स्ट. टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर देयर? बेस्ड ऑन द absence or presence of a joint cavity, joints are classified into two major categories or groups. यानी उसमें जॉइंट कैविटी को मेजर रोल अदा किया गया है, बताया गया है. अगर वो जॉइंट जो है वो कैविटेटेड है तो डाइअर्थ्रोसिस कहलाया जाएगा. अगर विदाउट कैविटेटेड है तो सॉलिड जॉइंट है, सिनआर्थ्रोसिस कहा गया है, जॉइंट्स विदाउट ए कैविटी. तो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया. नाउ फर्स्ट वी गो सिनआर्थ्रोसिस. Taking the account of the kind of connective tissue that binds two bones together, the synarthrosis can be classified into two types. Number one is fibrous joints, number two is cartilaginous joint. इसमें fibers होंगे. fibrous joint कहलाएगा, extensible होता है, ख़ासतौर पे skull में ज़्यादा देखा गया है. इसके बाद cartilaginous joint है. cartilaginous जैसे bone replace होती हैं जैसे एम्ब्रियो में, उस तरह के कार्टिलेज होते हैं, कॉन्ड्रोस हम इन्हें कहते हैं, उस टाइप के जॉइंट्स हो सकते हैं. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी. क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट बाय द टिश्यू, बाय टाइप ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम. फाइब्रस बोन्स कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू, इसमें सिनआर्थ्रोसिस है, इमूवेबल. इसके बाद कार्टिलेजिनियस बोन्स कनेक्टेड बाय कार्टिलेज. Symphyses slightly movable, थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है इसमें. Synovial articulating surfaces enclosed within fluid filled joint capsule. Synovial fluid होता है, उसमें filled capsule होता है और cavity होती है, जैसे articular cavity जिसे हम कहते हैं, joint cavity हम कहते हैं. तो ये जैसे knee joint है, elbow joint है, shoulder joint है, इनकी cavity है, उसे synovial joint कहते हैं. सबसे ज़्यादा जो मकदार में पाए जाते हैं सिनोवियल जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी की. फिर डाइआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल भी नहीं कहा गया है. ये जो टाइप है फाइब्रस की देखें बिल्कुल इमूवेबल हो जाते हैं, कार्टिलेजिनियस की स्लाइटली मूवेबल होते हैं या वो भी ख़त्म हो जाते हैं, उनकी फेट यही है. और सिनोवियल जो टाइप है डाइआर्थ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल हम उन्हें कहते हैं. नेक्स्ट we go toward the next slide, that is fibrous joints. Now we explain the further types of fibrous joints. The articulating surfaces of the bones are joined by fibrous connective tissue. क्योंकि जो bones हैं या cartilages हैं वो connective tissue से बनी है. टिश्यू की टाइप आपको पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उसके ऊपर भी स्पेशल लेक्चर आएगा हिस्टोलॉजी के ऊपर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज आते हैं, और उनकी आगे फर्दर सब टाइप्स भी आपको बताऊँगा. एंड दस वेरी लिटिल मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन अडल्ट. अडल्ट के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, लेकिन शुरू में कुछ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बचपन में, बच्चों में, और बाद में जो है अडल्ट स्टेज में यानी 20 ईयर्स के बाद ये क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. थ्री सब टाइप्स ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स आर कॉमनली नोन. इसमें सबसे पहले सुचर्स हैं, सिंडेस्मोसिस है, गोम्फोसिस है. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द डिटेल ऑफ दीज subtypes. Now first we see the sutures. Sutures are immovable joints. Sutures उनको कहा गया है कि वो immovable joints हैं, synarthrosis की type है, and are only found between the flat plate like bones of the skull. सिर्फ skull के अंदर ज़्यादातर ये पाई जाती हैं, और there is a limited movement until about 20 years of age, आफ्टर विच दे बिकम फिक्स्ड एंड इमोबाइल हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त तक ब्रेन बढ़ता रहता है 20 ईयर्स तक, जितनी एक्सटेंड हो सकता है बढ़ सकता है, एक्सपैंड हो सकता है, होता रहता है,
उसके बाद जो बोन्स है वो क्लोज्ड हो जाती हैं और वो परमानेंट हो जाती हैं सुचर्स के ज़रिए. Depends upon the shape of joining edges. The sutures are further classified into various types. उसको मज़ीद नाम देते हैं कि वो सिरेट लाइक अगर स्ट्रक्चर होगा, सा लाइक आपस में जोड़ रहे हैं और वो सुचर्स बना रहे हैं तो सा लाइक कहेंगे. डेंटिकुलेट होगा, टूथ लाइक प्रोसेस होता है. स्क्वेमस और प्लेन सुचर्स भी हो सकते हैं. तो ये डिफरेंट नेम्स हैं अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट्स ऑफ द joints in the brain, in the cranium. In fibrous connective tissue of the sutural joints has osteogenic capability. जो fibrous connective है joints उनकी capacity होती है कि वो bones को बना सकती हैं, further expand कर सकती हैं. Gradually this connective tissue is replaced by bone in the adult age, that is synostosis. तो सिनओटोसिस जो है ये बन जाता है कि परमानेंट वो बंद हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है एडल्ट स्टेज में. सिनोटोसिस ये जो फॉर्म है इसको देखा गया. नेक्स्ट विद गो, दिस इज़ द फिगर ऑफ द सुचर. ये ब्रेन के मुख्तलिफ सुचरिंग हो रही है डिफरेंट एरिया के साथ जो क्लोजिंग हो रही है आफ्टर द एज ऑफ 20. दीज आर बीइंग क्लोज्ड फाइनली. और इसको देख सकते हैं डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है और यहाँ पे सुचर लाइन है आपस में जो फ्लेक्सिबल होते हैं. शुरू में अडल्ट एज में 20 ईयर्स के बाद ये बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट वी गो सिंडेस्मोसिस. Syndesmosis is a fibrous joint in which two bones are held together by a thick band of fibrous tissue referred to as intraosseous ligaments. क्योंकि syndesmosis जो है वो जोड़ते हैं cartilages को, ligaments को. Syndesmology is the study of ligaments. Syndesmology is the study of ligaments. इंट्राओसियस लिगामेंट्स होते हैं जो इनको आपस में जोड़ते हैं. सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट की एक टाइप है जिसमें टू बोन जो हैं वो आपस में थिक बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू जिसे इंटरऑसियस कहते हैं, बोन्स को आपस में लिगामेंट्स जो हैं वो मिलाते हैं. A vertebral column, the ligamenta flava intervening between the vertebral arches, intraosseous membrane between radius and ulna, between tibia and fibula for syndesmosis. तो ये 2-3 टाइप हैं इसकी बेसिकली जो देखी गई हैं. नेक्स्ट आपको फिगर में दिखाता हूँ. Coraco-clavicular and stylohyoid ligaments are also considered to be intraosseous ligaments. क्लेविकुलर के साथ जो बनाती हैं बोन, स्टाइलोहाइड बोन के साथ जब लिगामेंट्स बनाते हैं तो उनको भी सिंडेस्मोसिस कहते हैं. नेक्स्ट वी गो टुवर्ड द एग्जांपल ऑफ सिंडेस्मोसिस. सिंडेस्मोसिस इज फाउंड हियर इन द लेग, in the lower limb, or you can see the ligament is attached between the two bones, that is fibula and that's a tibia. This is the example of this syndesmosis. Other examples are also given. Now what is Gomphoses? Gomphoses is also known as or means bolt like structure. जैसे बोल्ट होता है जिसमें एक चीज हम अटैच कर सकते हैं. Are also immovable joints. ये भी immovable है. These are mainly found in the teeth. They are found where teeth articulate with their sockets in the maxilla, upper teeth, or the mandible. Lower teeth को mandibles वाले एरिया से मिलते हैं. upper teeth जो है maxilla के साथ मिल रहे हैं, अटैच होते हैं with the sockets. तो इनको हम Gomphoses कहते हैं. इनकी भी मूवमेंट नहीं होती upper teeth and the lower teeth के साथ. This is specialized fibrous joint in which a conical process or peg of one bone fits into a hole or socket of the another bone. Joint between roots of the teeth and alveolar socket of the jaw, bones maxilla in the upper jaw and the mandible in the lower jaw have this variety of joint. You can see on the figure on the next page. This is the figure of the tooth. Gomphoses joint is shown here. इसके साथ जो अटैचमेंट हो रही है, दीज आर द मैंडिबल्स और कैन बी मैक्सिला. ये जो पोर्शंस हैं उनके हो सकते हैं. नाउ वी गो टुवर्ड्स द कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स. कार्टिलेजिनियस जॉइंट इंक्लूड 2 मेजर टाइप. इसमें आर मास ऑफ ओसियस टिश्यू जब आपस में मिलते हैं
आर यूनाइटेड टू ईच अदर बाय कार्टिलेज, जिसमें कार्टिलेज इन्वॉल्व होंगे। जहाँ पे फाइब्रस थे तो फाइबर थे, जहाँ पे एक्सपैंड हो जाते थे स्कल में, हमने जैसे बात की है। ये है कार्टिलेजेनियस, जिसमें कोंड्रोज हूँ, कोंड्रोज मीन्स कार्टिलेजेनियस जॉइंट हो जिसमें कार्टिलेज आपस में एक दूसरी हड्डी को मिलाते हैं। They are considered to form a cartilaginous joint. Two types are recognized: synchondroses, symphyses. Chondrosis का मतलब भी कार्टिलेज, यानी सिन का मतलब जोड़ना, आपस में अटैच करना, और एक है सिम्फीसिस, ये भी हम चेक करते हैं हिप बोन में, ये दरमियान में पाई जाती है सिम्फीसिस। नेक्स्ट, synchondrosis. In this type of joints, uniting medium is hyaline cartilage. Hyaline mean ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, यानी जो कलर जो है ट्रांसल्यूसेंट कलर होता है, इस वजह से हाइलन कहा गया। आप सी ट्रैके को भी देख सकते हैं, कलर वाइट होता है। कार्टिलेज होती हैं, सिन आर्थ्रोटिक फॉर्म बनाती हैं बिटवीन द फर्स्ट रिब एंड द मेनोब्रियम ऑफ द स्टर्नम। ये आपको नेक्स्ट फिगर में दिखाता हूँ कि फर्स्ट रिब एंड द मेनोब्रियम ऑफ द स्टर्नम की पहली जो टाइप है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे मेनोब्रियम कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहा जाता है, यानी पहली प्राइमरी फॉर्म है, विच आर टेम्परेरी एंड नॉट कंसिडर्ड टू बी ट्रू जॉइंट्स। ये प्राइमरी होता है, ट्रू जॉइंट्स नहीं कहा जा सकता, नहीं कहते। नो मूवमेंट्स आर पॉसिबल एट दीज जॉइंट्स। दिस इज़ द फॉर्म कि इनमें मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती। फेट क्या होती है कि यानी कितने अरसे तक ये काम करते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। दीज आर टेम्परेरी जॉइंट्स involved to allow growth of endochondrial bones. endochondrial जो फॉर्मेशन है बोन की, उसमें अलाउ करते हैं ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, यानी तकरीबन 15-20 साल तक देते हैं, उसको हेल्प करते हैं। टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होते हैं। फाइनली दीज आर वर रिप्लेस्ड बाई ओसियस टिश्यू, यानी बोन टिश्यू में रिप्लेस हो जाता है, एंड बिकम परमानेंटली फ्यूज्ड विद ईच अदर फॉर्मिंग ए सिंटोसिस, सिनास्टोसिस। सिनास्टोसिस बेसिकली इनको कहा गया है। उसमें जो प्रीवियस हमने पढ़ा था उसमें एस नहीं था, दैट इज़ मिस्टेक आई थिंक। तो अब नेक्स्ट वी गो सिम्फीसिस। सिम्फीसिस इट यूजेस हाइलन कार्टिलेज, ये भी ट्रांसल्यूसेंट ट्रांसपेरेंट जो कार्टिलेज होता है, हाइलन जिसे कार्टिलेज कहते हैं, सबसे ज़्यादा फॉर्म में ये होता है हाइलन कार्टिलेज। एट द एंड्स ऑफ द बोन्स एंड अ लेयर ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज एट द सेंटर। बाहर से हाइलन कार्टिलेज बोन्स हैं, दरमियान में हाइलन कार्टिलेज का फाइब्रो कार्टिलेज बनाते हैं, आपस में अटैच करते हैं। एम्फी ऑर्थ्रोटिक उन्हें कहते हैं बेसिकली। इंटरवर्टिब्रल डिस्क में देखा गया है, जो वर्टिब्रल कैनाल है या वर्टिब्री है स्पाइनल कॉर्ड की, उसमें देखे गए हैं। और दूसरे नंबर पे प्यूबिक सिम्फीसिस है, जो कि हिप जॉइंट के साथ जब अटैचमेंट होती है, अब नेक्स्ट फिगर में आपको समझ आएगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ मूवमेंट इज़ पॉसिबल, इसमें थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल है। फेट ऑफ सिम्फोसिस क्या होता है? मोस्ट ऑफ द सिम्फीसिस आर परमानेंट इन सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में परमानेंट, वाइल सेक्रल वर्टिब्री बिटवीन सेक्रम एंड कोकस एंड बिटवीन कोक्सीजियल सेगमेंट अंडरगो पार्शियल और कंप्लीट सिनोस्टोसिस से कहते हैं लेटर ऑन। तो ये समटाइम कंप्लीट भी हो जाती हैं और कुछ पार्शियल भी होती हैं। तो ये दो या तीन टाइप की बेसिकली कह सकते हैं इनको, इनकी फेट होती है, यानी ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या बाद में क्या इनकी शक्ल आ जाती है टाइम टू टाइम, उसके बारे में बताएं। नाउ गो टुवर्ड द फिगर, इमेजेस की देखते हैं। फिगर में सिनकोंड्रोसिस की हम सबसे पहले बात करते हैं। सिनकोंड्रोसिस इज फाउंड एपिफिजियल प्लेट, हाइलन प्लेट, यहाँ से देखें आपके सामने, ये 2-3 इनकी शक्ल बताइए। और ये स्टर्नम जो हमने बात की है सिनकोंड्रोसिस में, स्टर्नम जो है ये स्टर्नम का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ से दरमियान में देख पाते हैं ना, ये रिब्स आपस में अटैच हो रही हैं एक दूसरे के साथ। ये 12 पेयर ऑफ रिब्स जो है राइट और लेफ्ट साइड से अटैच हो रहा है, ये है स्टर्नम। इसको ऊपर वाले पोर्शन को मेनोब्रियम कहते हैं, दरमियान में बॉडी होती है और इसके नीचे जो प्रोसेस होता है, नीचे एक छोटी सी बारीक सी लेयर होती है, छोटा सा पार्ट होता है जिसको प्रोसेस कहते हैं। ये वाला नज़र आ रहा है छोटा सा पार्ट। तो लिहाजा इन तीनों को आप याद रखें। स्टर्नम इनका जो पहला पोर्शन होगा, मेनोब्रियम, इनके साथ जो अटैचमेंट है जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड द स्टर्नम इमूवेबल है, ये वाले जो अटैचमेंट कर रहे हैं ये इमूवेबल है। और स्टर्नम ये बॉडी को कहलाते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये हिप बोन है जिसमें सिम्फीसिस प्यूबिस ये फॉर्म आपस में, यहाँ पे वो
कार्टिलेजिनियस जॉइंट जो है सिम्फीसिस का आपस में मिल रहा है। तो ये दोनों एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई, आप इसको केयरफुली अटेंटिवली देखें। नेक्स्ट वी गो सिनोवियल जॉइंट्स, जिसका दूसरा नाम है डाइआर्थ्रोसिस। डाइआर्थ्रोसिस जिसका सेकंड नेम है, जिसमें मूवमेंट इज फ्रीली मूवमेंट अवेलेबल है। The articular surfaces of the bones are covered by a thin layer of hyaline cartilage. इनके जो ऊपर वाली surfaces होती हैं दोनों joints की, bones की, वो hyaline cartilage से बने होते हैं, अटैच होते हैं, और आपस में डायरेक्ट बोन टू बोन अटैच नहीं होते, बल्कि उनके दरमियान hyaline cartilage होती है separated by a joint cavity. This arrangement permits a great degree of freedom of movement. The cavity of the joint is lined by synovial membrane. नेक्स्ट इसमें देखेंगे, आपको पता चलेगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंटली सिनोवियल मेम्ब्रेन्स के साथ होती हैं, जॉइंट्स के साथ होती हैं, और कौन सी नहीं होती। दिस इज़ वेरी इसेंशियल क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ वन आर्टिकुलर सरफेस टू दोज ऑफ द अदर। तो ये कैविटी ऑफ द जॉइंट इज लाइंड बाय सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, आपस में लाइंड होती है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ वन आर्टिकुलर सरफेस टू दोज ऑफ द अदर के साथ मेम्ब्रेन एक्सटेंड करती हैं, यानी बढ़ती रहती हैं, इनका कंपार्टमेंट मॉडल बनाते हैं। सिनोवियल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्टेड ऑन द आउटसाइड बाय अ टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन रेफर टू एज कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। एक इसके बाहर कैप्सूल होता है, कैप्सूल ऑफ द जॉइंट जिन्हें हम कहते हैं। द आर्टिकुलर सर्फेसेज आर लुब्रिकेटेड बाय वेरी विस्कस फ्लूइड होता है कॉल्ड सिनोवियल फ्लूइड, जहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड में भी इंजेक्शन लगाया जाता है, स्टीरॉयडल इंजेक्शन जो पेन हो, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में या जोड़ों का दर्द हो उनके लिए लगाया जाता है। तो विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सिनोवियल मेम्ब्रेन, ये सिनोवियल मेम्ब्रेन ही सिनोवियल फ्लूइड बनाती है जो डेली बेसिस पे बनते हैं। तो नेक्स्ट वी गो इन सर्टेन सिनोवियल जॉइंट्स, फॉर एग्जांपल इन द नी जॉइंट, ये घुटने के जो जॉइंट है, डिस्क्स आर वेजेस ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज आर इंटरपोज्ड बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ द बोन्स। दीज आर रेफर्ड टू एज आर्टिकुलर डिस्क्स, या मिनिस्काई ने कहते हैं, आर्टिकुलर डिस्क्स कहते हैं या मिनिस्कस कहते हैं, मिनिस्काई भी कहते हैं। फैटी पैड्स भी पाए जाते हैं, आर फाउंड इन सम सिनोवियल जॉइंट्स, कुछ सिनोवियल जॉइंट में पाए जाते हैं, सब में नहीं होते। लाइंग बिटवीन द सिनोवियल मेम्ब्रेन एंड द फाइब्रस कैप्सूल और द बोन, एग्जांपल्स आर फाउंड इन द हिप एंड द नी जॉइंट्स। खासतौर पे फैटी पैड्स जो हैं वो हिप और नी जॉइंट्स में पाए जाते हैं। ये इनके कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो इन जॉइंट्स में पाई जाती हैं, जिसको आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। आर्टिकुलर डिस्क्स हैं, फैटी पैड्स हैं। Articulating bone surfaces which rub against each other have a protective covering of hyaline cartilage. दोनों के जो हड्डियाँ होती हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों आपस में जब मिलती हैं तो उनमें हाइलन कार्टिलेज उनके दरमियान में होता है, जिनको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो जोड़ बनाने वाले कार्टिलेज कहते हैं, जो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड कि इसका क्या रोल है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको क्लियरली आपने अंडरस्टैंड करना है और समझना है और लिखना है। इसमें एलिमेंट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद डाइआर्थराइडल सिनोवियल जॉइंट्स, डाइआर्थराइडल या सिनोवियल जॉइंट्स में पाई जाती हैं। ये 7 जो टाइप हैं ये चीज़ें पाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं, जो हर सिनोवियल जॉइंट के अंदर पाया जाएगा। लेकिन कुछ जो हैं समटाइम्स एसोसिएटेड विद डायर सिनोवियल जॉइंट्स, कुछ जो हैं किसी किसी जगह पे ये पाई जाती हैं, किसी पे नहीं पाई जाती। नाउ फर्स्ट वी गो टुवर्ड्स द एलिमेंट्स ऑलवेज एसोसिएटेड विद सिनोवियल जॉइंट्स इंक्लूड सिनोवियल फ्लूइड। तमाम सिनोवियल जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिकुलर जो कार्टिलेजेस हैं तमाम में पाई जाती हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। आई शिल टेल, यहाँ पे आपको बताऊंगा शक्ल कैसे हैं आपको सिनोवियल जॉइंट्स के आपस में जो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये देखें ये कॉर्नर पे, और इसका भी आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तीसरे नंबर पे जॉइंट कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल। चौथे नंबर पे सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन, ये देखें सिनोवियल मेम्ब्रेन्स आर आल्सो प्रेजेंट। फिर 5वें नंबर पे लिगामेंट्स, लिगामेंट्स आर आल्सो, ये बाहर से कवर करते हैं एक दूसरे को, जॉइंट्स को बाहर से अटैच करते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। लिगामेंट्स जो है अटैचमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है, सिंडेस्मोसिस भी कहते हैं। और ब्लड वेसल्स, 6ठे नंबर पे ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स जो जॉइंट्स को
प्रोवाइड करेंगे, आगे इसके बारे में बात होगी। और 7वें नंबर पे 7th नंबर पे है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स जो यहाँ से पेन की जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसरी उसे कहते हैं जो लेके ब्रेन की तरफ जाए, और मोटर वो होती है नर्व जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके इसको मोटर एक्टिविटी करे या मूवमेंट में हेल्प करे या मूव करे या उसको हटाए किसी चीज़ को, तो उसे मोटर कहेंगे। ये सेंसरी होता है। तो 7 जो है एलिमेंट्स आर देयर। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सिनोवियल जॉइंट्स नहीं भूलेगा, क्योंकि रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सारी बीमारी जो हैं वो जॉइंट्स की भी बहुत सारी बीमारी हैं। तो आर्थ्रोपैथीज हम उन्हें कहते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एलिमेंट्स समटाइम्स एसोसिएटेड विद सिनोवियल जॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं मजीद? इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क्स या मिनिस्काई, मैंने आपको बताया था ये हो सकती हैं। इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क्स हो सकती हैं, मिनिस्कस हो सकते हैं, मिनिस्काई हो सकती है। इसके बाद हमारे पास पेरिफेरल लेब्रम है। लेब्रम जो है इसमें पाया जाता है पेरिफेरल फॉर्म में, यानी कॉर्नर पे होता है, दरमियान में नहीं होता, साइड पे होता है। यहाँ पे शो नहीं किया गया, आगे देखते हैं इसको। इसके बाद फैटी पैड्स हैं, ये फैटी पैड्स हैं कुछ पाए जाते हैं। और इसके बाद बरसा पाया जाता है। बरसा जो है ये वाली फॉर्म होती है जिसमें से कोई रगड़ आ जाती है या ये रिलीज़ करते रहते हैं फ्लूइड, फोम लाइक स्ट्रक्चर होता है बरसा। अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बरसाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ दी बरसा। सिनोवियल प्लाइका होता है, प्लाइकी या प्लाइका, ये भी एक फॉर्म है जो यहाँ पे नहीं शो की गई, नेक्स्ट हम फिगर में देखेंगे। तो ये कुछ एडिशनल हैं पॉइंट्स जिनमें पाए जाते हैं। You can see this figure, this is very important. Next we go structure of the synovial joints. Already we have discussed some of the points like ligaments, band of strong fibrous tissue. इसका मेन फंक्शन है टू कनेक्ट बोन टू बोन। लिगामेंट्स बोन टू बोन आपस में अटैच करवाता है, ये देखें लिगामेंट है, कुछ पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए। इसके बाद सिनोवियल फ्लूइड है, ये दरमियान में फ्लूइड नज़र आ रहा है, कौन बनाता है ये भी हम बताएंगे। स्लिपरी फ्लूइड होता है, द कंसिस्टेंसी ऑफ एग वाइट्स, एग वाइट की कंसिस्टेंसी होती है उसी तरह के होते हैं। दैट इज कंटेन्ड विद इन द जॉइंट कैविटी के अंदर होता है, ताकि मूवमेंट में रगड़ जो है वो ना लगे और ये इसको हेल्प करे, स्मूथ करे। और टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द आर्टिकुलर कार्टिलेज इन द जॉइंट, ये हेल्प करता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, बड़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं, आप इसको गौर से देखें, आपको लाइफ टाइम ये नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। Glossy smooth cartilage that is spongy and covers the ends of the bones in the joint to absorb shock and to prevent friction between ends of the bones in the joint. Articular cartilage जो हैं ये shock absorber हैं और friction से भी बचाते हैं। These are also again very important हैं, एक दूसरे bones को नहीं destroy करते बल्कि ये आपस में कवर करते हैं, उसको friction को कम करते हैं। इसके बाद joint capsule है, इसके बाहर joint capsule है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करता है। ए टफ फाइब्रस टिश्यू दैट हैज़ 2 layers विद द फाइब्रस कैप्सूल लाइंग आउटसाइड द सिनोवियल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सिनोवियल मेम्ब्रेन से थोड़ा बाहर होता है, कवर करता है उसको। इस साइड पे भी होगा, दोनों साइड पे होगा। फाइब्रस कैप्सूल हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द जॉइंट while the synovial membrane lines the joint and secretes synovial fluid। और फाइब्रस कैप्सूल जो है हेल्प्स टू स्ट्रेंथन दी, जॉइंट को स्ट्रेंथन करेगा, while synovial membrane जो है लाइंस एंड secretes synovial fluid, ये बनाएंगी। इसके बाद हम कुछ और स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जॉइंट्स की जो प्रीवियस फिगर में नहीं दिखाई गई, वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। आर्टिकुलर डिस्क्स हैं या मिनिस्काई हैं। मैनी सिनोवियल जॉइंट्स स्टर्नोक्लेविकुलर एंड टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स जो होते हैं, जो हेड के साथ होते हैं, टेम्पोरल बोन के साथ, मैंडिबल के साथ जो मिलते हैं नीचे हमारे फेस के साथ, कंटेन फाइब्रोकार्टिलेजिनियस डिस्क्स कॉल्ड आर्टिकुलर डिस्क्स विच डिवाइड कैविटी इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। वो डिफरेंट कंपार्टमेंट में कैविटी बना लेते हैं, कुछ जॉइंट्स में है, सब में नहीं, मैनी जॉइंट्स में उन्होंने कहा है। दैट आर इंटायरली डिफरेंट एट दिस इट्स मार्जिन्स एंड आर्टिकुलर डिस्क इज फ्यूज्ड टू fibrous capsule of the synovial joint being avascular। आपको पता है कि जॉइंट्स में जो synovial joints हैं या अदर joints हैं वो avascular होते हैं, यानी ब्लड सप्लाई नहीं होती। वेस्कुलर का मतलब ब्लड सप्लाई है, avascular का मतलब नेगेटिव है, हो जाता है, नहीं है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, डायरेक्ट नहीं होती, यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में आएगी।
The fibrocartilage of the articular disc is nourished by synovial fluid. Synovial fluid में कुछ ingredients blood की होती हैं, कुछ उसमें salts होते हैं जो कि इनको जो nourishment है growth की वो provide करते हैं. Otherwise directly उनके अंदर vessels नहीं होती, blood vessel नहीं होती, तो avascular कहते हैं इस वजह से. इसके बाद फंक्शन देख लेते हैं. फंक्शंस इंक्लूड के एडजस्ट अनइक्वल आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस. यह है कि कहीं पे थोड़ी सी ऊपर नीचे हड्डी होती है, एडजस्ट नहीं हो रही होती, तो अनइक्वल सरफेसेस के अंदर ये जाके कवर करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं. एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं. तीसरे नंबर पे फैसिलिटेट कंबाइंड मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. जब कंबाइंड मूवमेंट होगी 2-3 मसल्स की या बोन्स की, तो उसमें भी हेल्प करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसमें इनके आर्टिकुलर डिस्क्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है. Next we go toward the menisci or meniscus is the singular form. Meniscus singular form है. Menisci is the plural form. Menisci is a crescent means meniscus. Crescent like structure को कहते हैं meniscus. और shaped wedge of fibrocartilage already we have discussed. Two menisci medial होता है यानी दरमियान वाला, और lateral होता है lateral side of the body. ये होते हैं इनके दो अंदर वाली साइड पे बॉडी की, मिडल वाली साइड पे होंगे, मीडियन साइड पे. एंड लेटरल जो मेनिस्काई आर फाउंड इन द नी जॉइंट, टीबियो फिमोरल जो जॉइंट है, नी जॉइंट जिसमें हम कहते हैं टीबिया और फिमोरल जो ये बोन्स हैं आपस में मिलती हैं, वेयर दे आर इंटरपोज्ड बिटवीन फिमोरल एंड टीबियल कंडाइल्स. अदर्स डिस्टल रेडियो अल्नर, स्टर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमायोक्लेविकुलर, टेम्पोरो मैंडिबुलर, एपोफिजियल. वेरिएबल हैं ये भी, कहीं पे शो करता है किसी भी जगह पे नहीं. फंक्शंस इंक्लूड मेनिस्कस सर्व्स एज शॉक अब्जॉर्बर. शॉक अब्जॉर्बिंग कुशन का काम करता है मेनिस्काई जो है. आल्सो एडजस्ट अनइक्वल कॉन्ग्रुएंस, अनइक्वल स्पेसेस बिटवीन द आर्टिकुलर बोन्स सरफेस, बोन सरफेसेस के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं उनको भी फिल करता है, जैसे प्रीवियस हमने बात की है. इसके बाद लेब्रा जो है बोनी सॉकेट होता है. लेब्रा ऑफ सिनोवियल जॉइंट में बी प्रोवाइडेड विद ए प्लाइएबल रिंग होता है. प्लाइएबल रिंग होगा फाइब्रोकार्टिलेज का, कॉल्ड लेब्रम. इस तरह का गोल रिंग होगा जिसको हम लेब्रम कहेंगे. विच इज अटैच टू ए रिम ऑफ द सॉकेट, और रिम ऑफ द सॉकेट से अटैच होता है. लेब्रा जो है प्लूरल है, लेब्रम जो है सिंगुलर है. और ये नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाता हूँ मैं. फंक्शंस लेब्रा सर्व टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बोनी सॉकेट्स. ये डेप्थ को नीचे अंदर करता है, डीपर ले जाता है, और उसकी वजह से उनके जो अटैचमेंट है, उनकी जो जॉइंट की एक्टिविटी है वो बड़ी स्ट्रांग होती है. जितना ये डीपर होगा उतनी जो है जॉइंट अच्छा एक्ट करेगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. इसमें लेब्रम ग्लेनोडॉयल है, अटैच्ड विद द एज ऑफ द ग्लेनॉइड ऑफ स्कैपुला. स्कैपुला के ग्लेनॉइड से अटैच होता है बोन के साथ जो है. लेब्रम एसिटाबुलर भी हम नेक्स्ट फिगर में है, अटैच्ड विद द रिम ऑफ द एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन के साथ ये अटैच होता है. तो टू मेजर टाइप्स ऑफ लेब्रा आर देयर. नेक्स्ट वी गो मूवमेंट्स ऑफ द सिनोवियल जॉइंट्स. इसमें कौन कौन सी मूवमेंट जो है हो सकती है. स्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग मूवमेंट्स हैं. इट इज़ सिंपल टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी डिग्री ऑफ एंगुलेशन और रोटेशन. कोई ग्लाइडिंग मूवमेंट में सिंपल मूवमेंट है, इसमें कोई एंगल चेंज नहीं होता, रोटेशन नहीं होती, तो ये सिंपल मूवमेंट है. सबसे कम जो मूवमेंट होती है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट है, और यूनी एक्सियल होती है बेसिकली. एंगुलर मूवमेंट्स हैं, इन्वॉल्व्स द इंक्रीज और डिक्रीज इन एंगल, यानी एंगल जो है चेंज होता है. 70 एंगल, 30 एंगल, डिफरेंट एंगल्स आपने सुने हैं. इसमें फ्लैक्शन भी हो सकती है, एक्सटेंशन भी हो सकती है, अबडक्शन भी हो सकती है, एडक्शन भी हो सकती है. किसी चीज़ को बिल्कुल करीब ले आएँ, दूर ले जाएं, तो इस कंडीशन में एडक्शन और अबडक्शन, दूर ले जाने को कहेंगे. इसके बाद रोटेटरी मूवमेंट है, जो रोटेट करते हैं, जैसे हम गर्दन को रोटेट करते हैं, हिप को रोटेट करते हैं, इस तरह की जो फॉर्म है, या पाँव को रोटेट करते हैं या हाथ को रोटेट करते हैं, तो ये रोटेटरी मूवमेंट्स हैं. इसमें एंगल चेंज नहीं होगा. इसमें रोटेट्स अराउंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, मीडियल एंड लेटरल साइड पे. हम लेटरल साइड पे यानी मीडियल अपनी बॉडी की तरफ मूवमेंट होती है मीडियल साइड पे, लेटरल जो है बॉडी के बाहर मूवमेंट होती है लेटरल साइड की जो मूवमेंट होती है. ऑफ द फीमर एट हिप जॉइंट नंबर 1,
और दूसरे नंबर पे है फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, पहली सर्विकल जो वर्टिब्रा है उसके दरमियान जो रोटेटरी मूवमेंट होती है, जो गर्दन की है ख़ास तौर पे। इस सर्विकल गर्दन को ही कहते हैं क्योंकि 7 वर्टिब्रीज होती हैं, 8 नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो यहाँ से राइज होती हैं, सर्विकल वर्टिब्री। इसके बाद C1 से लेके C8 तक होती है वर्टिब्रीज। इसके बाद 7 तक होती है, लेकिन इसमें नर्व्स जो हैं वो C1 to C8 होती है। सरकमडक्शन की बात करते हैं, कम्बिनेशन मूवमेंट इन विच द डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी पार्टली या बॉडी पार्ट यूजुअली ए लिम्ब मूव्स इन ए सर्कल लाइक फ्लेक्शन, अबडक्शन, एक्सटेंशन एंड अडक्शन वगैरह हो सकती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो शोल्डर जॉइंट है, सेलर जॉइंट है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब है, वो सरकमडक्शन कर सकते हैं, यानी मूवमेंट इसकी ज़्यादा होती है। एक शोल्डर जॉइंट जहाँ घुमाएंगे इसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है, और एक है सेलर जॉइंट जिसे थंब को हम घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं जैसे कि शोल्डर को करते हैं, तो ये मूवमेंट ऑफ द सिनोवियल जॉइंट्स कहलाती हैं। Now first part has finished. Thank you very much for your attention, for your listening. If you have any question or any problem regarding previous lecture, please tell me in the comment section or write in the comment section. And in this video, in the next part, we will study, I have already told in the first content